Acha ji, today is going to be our last topic from the from the chapter of provision for doubtful debts, and we have done this chapter. We have covered almost all the past papers which has come in the previous years. Today we are going to discuss the last question, which has come in May-June 1922. May-June 1922, and this question carries 15 marks, and some students are able to solve this question correctly, but there were some mistakes also by some students, and those mistakes are very important, and we need to see that what kind of mistakes they have done. So question looks simple, but there is a little change in the question, and we have to see that change, and we have to answer the question accordingly. After this, we are going to start next chapter, which is the chapter of depreciation. तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. Sophie has provided the following information relating to her trade receivables at 31st December 2018. Analysis of trade receivable. अब यहाँ बच्चे confused हो गए थे. Children basically they get confused that this is the aging schedule. No, it's not like that. Aging schedule tells you that how many days have been passed, ठीक है, from the due date that the trade receivable have not paid us the amount due from the due date. How many days have already passed? Overdue account, you may say like that. But here is the analysis of trade receivable, which shows that those trade receivables who have not been paid to us from 0 to 60 days, they are 68% of the amount of trade receivable. यानी 0 to 60 days के जो ट्रेड रिसीवेबल हैं, उनकी जो अमाउंट है टोटल ट्रेड रिसीवेबल में, द अमाउंट ऑफ those trade receivable who have not paid us and the 60 days almost have passed, the amount of trade receivable were 68%. And those trade receivable where 3 months, almost 3 months have passed, 61, 90 days, their percentage is 20%. And over 90 days, yani above 3 months, the percentage is 12%. But the percentage of provision is not given. This is schedule of trade receivable, but not of the same type which we have seen earlier. Because the percentage of provision was given in the previous questions. Here the percentage of trade receivables are given in the first instance. But previously, percentage of provision is given in the question, and the amount of trade receivables is given in the question, is mostly given in the question. But here, total amount of trade receivables is given, and the different percentages of trade receivables are shown to us in the question. Number 1 point, we'll look at the number 1 point. At 31st December 2018, total trade receivables were 54,500. So first you need to understand this point, because that is very important point. The total trade receivables are 54,500. And out of that, 68% belongs to 0 to 60 days, 20% belongs to 61 to 90 days, and above 3 over 90 days belongs to 12%. Aram, can you please close your mic so that I can teach you properly? Aram, you need to switch off your mic, my dear. अच्छा जी, तो अरम ये क्वेश्चन हमारे सामने है. मई जून 19-22 से क्वेश्चन है, ये 19 में पिछले साल आया था. अब उसने कहा है कि नंबर 1 पॉइंट में देखें, at 31st December total trade receivables were 54,500. So let's go towards our page. Actually, total trade receivables are 54,500. Out of these trade receivable, 0 to 60 days के जो trade receivable है वो कितने परसेंट हैं? 68%. तो निकाल लें. 60 to 90 days के जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कितने परसेंट है? 20%. तो उसको कैलकुलेट कर लें. और ओवर 90 डेज के जो ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है जी, उनकी परसेंटेज उन्होंने बताई थी. कितने परसेंट है जी? वो 12%. अगर आप इस परसेंटेजेस को ऐड अप करो, जरा अगर परसेंटेजेस को ऐड अप करो
तो क्या बनेगा 68 plus 12 80 plus 20 total 100%. So 100% is our trade receivable, which is 54,500, out of which 68% belongs to 0 to 60 days, 60 to 90 days 20%, and 12% belongs to over 90 days. If you want to calculate it, or if you are going to calculate it, how we are going to calculate it? 54,500 multiplied by 0.68 or 68%, we will get the trade receivable that they are 37060. 37060. 61 to 90 days की जो ट्रेड रिसीवेबल है, they are 20% and 20%, and they are 10,000 or 10,900 is the amount of those trade receivables. And then over 90 days की जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, total trade receivable are 54,500, out of which 12% basically belongs to over 90 days, which is 6540. अगर आप तीनों का अमाउंट को ऐड करोगे ना, amount will still become 54500. That is the amount of total trade receivables. तो पहले तो ये पॉइंट नहीं आ गया इसके अंदर कि परसेंटेजेस जो दी हुई थी वो प्रीमियम की तो अलग दी होगी, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स की भी डिफरेंट परसेंटेजेस दी हुई। यानी ट्रेड रिसीवेबल भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, वन of 37060 which belongs to 0 to 60 days, one from 60 to 160 to 90 days, 20% belongs to 10,900, and 6540 12% over 90 days, which is the percentage is 12%. Let's see the question again. Sophia has the following information: percentage of trade receivable aram, तो 0 to 60 days की जो trade receivable है उनकी percentage 68% है, 20% है, 12% है, ऐड करो सबको 100% बनेगा. Number 1 point, at 31st December total trade receivable were 54,500. So out of total trade receivables of 54,500, 68%, 37060 belongs to 0 to 60 days. 20%, which is 10,900, belong to 61 to 90 days. And over 90 days, above 90 days, of 12%, which is 6540, belongs to over 90 days. Next, number 2 point, Dixie, who had been declared bankrupt, owed 1,500. Dixie was a trade receivable who has declared bankrupt, means he has become bad debts, insolvent, with an amount of 1,500. The debt was 110 days old at 31st December and was to be written off. This debt was 110 days old and it is to be written off, means you need to treat it as bad debts, which is not yet subtracted from the amount of 110 days. Sophia's policy is to make a provision of doubtful debts as follows: 5% for debts aged between 61 to 90 days old. 61 to 90 days की डेट जो थी ना 10,900 की, उसमें कितनी प्रीमियम बनानी है आपने? 5%. और 90 above जो डेज हैं उसमें 7.5% प्रीमियम आपने बनानी है. The balance on the provision for doubtful account at the start of the year on 1st January 2018 was 1,100. This is the balance brought down of provision for doubtful account, which should be written on the credit side. Calculate the general entry right of an irrecoverable debt. पहले इसकी एंट्री पास कर लेते हैं हम. But entry will be pass. Entry will be bad debts, as we know, debit, and Dixie, trade receivable. Dixie name is mentioned, credit. What is the amount? 1,500. So the entry for the recoverable debts, which is known as bad debts and irrecoverable, same meaning. Bad debts to trade receivable, पता है आपको, bad debts to Dixie. Expense है डेबिट हो जाएगा, Dixie हमारा ट्रेड रिसीवेबल नहीं रहा, वो क्रेडिट हो जाएगा. लेकिन ये अमाउंट वो कहता है, ये अमाउंट ओवर 90 डेज वाले जो ट्रेड रिसीवेबल हैं, जो कि आपके बनते हैं 6540, इसमें शामिल है. असल में ये लिखा हुआ है 110 डेज में, उसमें ये 1500 की अमाउंट शामिल है. अब हमें इसमें से माइनस करनी पड़ेगी ना 6540 में से. क्यों सर? क्योंकि ये बैड डेट्स हो गए. तो सर ये पहले माइनस हो चुके होंगे, नहीं माइनस हुए, ये लिखा है. एंड वाज टू बी रिटन ऑफ, आपने भी माइनस करने थे, तो आपने बैड डेट्स हो गए, माइनस नहीं करिएगा, आपने माइनस करेंगे पहले, क्योंकि इन पर आप प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते. क्यों सर? क्योंकि दे हैव बिकम बैड, दे आर नॉट डाउटफुल, दे हैव बिकम बैड. दैट्स व्हाई वी हैव पास्ड द एंट्री बैड डेट्स टू Dixie 1,500 and 1,500. Any problem till here? Please, you can ask me. Zafar. जी, सिकंदर, any problem? अगर हम कोई मसला है तो बताएं. You all three are here. No sir, no problem. अब इस पॉइंट की या सिकंदर का माइक नहीं चल रहा है, उसमें भी कह देना. ओके, अब ये आपने लिख तो लिया है, ये आप लिख लीजिए, मैंने सामने लिखा है ताकि मैं इसको समझे रब करना पड़ेगा. Move forward.
54,500 का आप 68% लें अगर, तो ये आपका आता है 37,060। इसी का अगर आप 20% लें तो वो आपका आता है 10,900। और इसी का अगर आप क्या लें 12% लें तो वो ये निकला हुआ है 6540। और इसमें से आपको अमाउंट माइनस करनी है कितनी, कौन सी वाली, 1500 वाली, क्योंकि वो इसमें शामिल है, जो कि अब क्या हो गए हमारे वेडेट्स हो गए, एंड दैट इज नॉट टू बी रिटन ऑफ, दैट इज स्टिल टू बी रिटन ऑफ। आपने भी राइट ऑफ करना है उसको। 1500 की एंट्री की आपने, बैडेट्स टू डिक्सी 1500 और उससे फिर आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे, कर रही हैं। जी, आई होप मैं लिखिए होगा। कोई मसला है तो मुझे यहाँ तक बता दें, अदरवाइज मैं इसको रब करूँगा। Go towards this. So trade receivables, total trade receivable are 54500, which is 100% of the trade receivable, out of which 0 to 60 days, which is 68%. 37060 was our trade receivable, which has not paid us till the last 2 months. 20% have not paid us till the last 3 months, which is 10,900. 20% of 54500, and over 90 days, इनको 3 माह से भी ज्यादा हो गए हैं, वो 12% है, which is 6540. लेकिन एक बंदा था डिक्सी, जो कि हमारा बैडेट्स हो गया, और वो 6540 में उसकी अमाउंट शामिल है, तो हमें इसमें से वो 1500 माइनस करने पड़ेंगे, तो वो अमाउंट आपके पास आएगी जो बाकी रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल है ओवर 90 डेज की। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया, सर उन्होंने तो वहां पे लिखा है ओवर 110 डेज। भाई ओवर 90 डेज का मतलब है 90 दिन से ऊपर, 3 माह से ऊपर। अब चाहे 4 माह हुए हो उसको, 6 माह हुए हो, 11 माह हुए हो, 1 साल के अंदर जितना भी ओवर 90 डेज वाला होगा वो इसी में आएगा, वो 6540 में ही आएंगे। 6540 में ही वो बैड डेट्स थे जो शामिल है 1500 के, जो कि आपको माइनस करने पड़ेंगे बिकॉज ये अब राइट ऑफ हो गए हैं। तो 5040 इज अवर रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ वी नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑन दिस ट्रेड रिसीवेबल्स। सो 37060 जो 60 डेज पे प्रोविजन जो बनानी है आपने, वो 0% है, वो है ही नहीं। और 60 to 90 डेज 900 पर प्रोविजन कितनी बनानी है आपने, दैट इज 5%। और जो 5040 के हैं आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द 1500, दैट इज 7.5%। दोनों की प्रोविजन जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं भी दोबारा जाता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, डोंट वरी एट ऑल। इस पे 0.05% है, विच इज 545। और अगर हम दूसरे पे करें यानी 5040, उस पे कितनी है 7.5%, which is 378, which comes, the answer comes basically 378। टोटल कर लें इसका, टोटल आपका आ जाएगा जी 42924 is the total provision which we need to, which is required or which we need to prepare. I'm sorry, थोड़ा गलती हुई है, ये 545 plus 378 it becomes 923 actually, तो वो 546 मैंने कंसिडर कर लिया, वो बेसिकली 545 था, ये हमारा बनेगा 923। ओके, दिस इज द प्रोविजन व्हिच वी नीड टू प्रिपेयर। मैं दोबारा चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, फिर इसको देखते हैं क्वेश्चन को। अगर आप गौर करें क्वेश्चन में 54500 वाज अवर टोटल ट्रेड रिसीवेबल, आउट ऑफ विच 68% 37060 के ट्रेड रिसीवेबल 0 to 60 डेज के हैं। उन पे प्रोविजन की परसेंटेज बिल्कुल नहीं है। नंबर 3 पॉइंट में देखें, उन पे प्रोविजन बनाने ही नहीं है, क्योंकि उन पे शाकी नहीं, वो पैसे दे देंगे इसलिए। जिनको 90 दिन गुजर गए हैं उन पे 20% है, वो थे हमारे कितने के 20% ऑफ 54500 which becomes 10,900। 10,900 के जो डेटर्स हैं आपके, ये देखिए उस पर प्रोविजन आपने कितनी बनानी है 5% फॉर डेट्स एज्ड बिटवीन 61 एंड 90। 61 एंड 90 के ये ट्रेड रिसीवेबल है जो कि 10,900 बनता है, उन पर हमने कितने परसेंट बनानी है 5%। तो मैंने क्रिएट की उसके ऊपर 10,900 पे 5% निकाला, कितना आ गया 545। फिर वो कहता है जो 7.5% निकालनी है आपने किसमें, डेट्स एज ओवर 90 डेज ओल्ड। 90 डेज से ऊपर पे कितने हैं 12%, और वो ट्रेड रिसीवेबल कितने थे 6540,
लेकिन उसमें एक ट्रेड रिसीवेबल शामिल था 1500 का, जो कि क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, बैड डेट्स हो गया, और वो कितना पुराना था, 110 डेज ओल्ड, यानी 90 डेज से भी ज्यादा। इसी में आएगा ना, 90 दिन से ज्यादा का मतलब है 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन, 140 दिन भी हो सकते हैं, इसी में आएगा। तो इसमें से 1500 पहले आपको माइनस करने पड़ेंगे, फिर आप प्रीमियम बनाएंगे कितनी, 7.5%। बैलेंस कितना प्रीमियम का दिया हुआ है, 1100। तो मैंने क्या बनाया, 5040, पहले 6540 निकाला, 12%, 54500 का 12%, 6540 आता है, माइनस 1500 which is the bad debts, 5040 पे निकाला 7.5%, 378, total provision is 923. I'm going to prepare the T account. You need to write it down. Any problem you can ask me. जी सिकंदर बताएं, मसला है तो सिकंदर बताएं मुझे। उज़ैफा, No sir, no problem. जी अरम बताओ यार, कोई मसला है तो बताओ भाई, क्यों खामोश हो प्लीज। So we have come to this conclusion, Uzafa, Aram, and all other. The problem is this, that you are not going to find the same question in your past papers or in your upcoming exam. There are going to be different questions coming in the paper. You have to equip yourself in different dimensions to go for the question which is going to come in your paper, right? So that you can handle that question properly. So you need to practice yourself well with different questions, different types of questions, so that it may not hamper your result or you may not create problem for you in the future. तो इसीलिए पास पेपर्स करना बहुत जरूरी है, मैंने बताया है। और पास पेपर जो बच्चा कर लेता है सारे, समझ लें वो सक्सेसफुल है। इस तरह जो टीचर पास पेपर करवाता है कंप्लीट, इट मींस ही इज ए गुड टीचर, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू टीच questions from past papers because they are tedious, they are difficult, and they are different from each other. So you need to make up the mind of the student time and again. You need to make up the mind of the student time and again. हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले उसको एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ता है, और फिर आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। सर जी मैं 2 मिनट में जरा ज्वाइन करता हूँ, मेरे ना लैपटॉप की बैटरी लो हो गई, तो मैं फोन पे ज्वाइन करता हूँ, 2 मिनट दे दें मुझे। जी 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 करें करें, कोई मसला नहीं। ओके सर ये उज़ैफा फिर भाग गया। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, हमने देखिए पहले क्या था, स्टेट द जनरल एंट्री राइट ऑफ एन इरिकवरेबल डेट, मैंने पास कर ली थी, बैड डेट शुड एक्सीड 1500। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर ऑफर डेट एट 31 दिसंबर, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको, आपको पता है मैंने कैलकुलेट करके दिखा दी। फिर वो कहता है प्रिपेयर द प्रोविजन ऑफ डेट अकाउंट फॉर द ईयर, अकाउंट में भी बना के आपको दिखाता हूँ। नॉन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, वो प्रूडेंस होता है, आपको पता है। फिर हम उससे आगे बाद में चलते हैं, पहले मैं प्रोविजन फॉर ऑफर डेट अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ। इसकी पिक्चर ले लें जी जरा सवाल, इधर पिक्चर ले लें क्वेश्चन, क्योंकि अगेन यू नो यू ऑल नीड टू हैव द माय बुक नाउ, because in the upcoming days we are going to do past papers which is available in the book and you should have your books, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपने दोबारा प्रैक्टिस में करने हैं। you need to revise these questions at the end of your syllabus or at the end of your near your papers। इसकी जरा पिक ले लें, फिलहाल तो आपके पास नहीं है, तो फिलहाल पिक ले लें आप, ताकि आप इसे कर सकें सॉल्व। इसकी तस्वीर लेके काइंडली ग्रुप में भेज दें, इसकी पिक्चर लेके आप ग्रुप में भेज दें, नो इशू।
आप I hope you have taken the pic and you can write it down also. इसको भी आप लिख लें. जो उसने कहा था you need to calculate the provisional outputs, वो मैंने नीचे calculation की हुई है. This will be your answer. This is going to be your answer for that particular part that you have calculated the provisional outputs, and the total amount is basically जो 37060 के trade receiver हमने provision create होनी ही करनी ही नहीं. There is no provision which is required on 37060, which is 0%. On 10,900, we have to go for a provision of 5%, which is 545. And over 90 days, we have trade receivables of 6540, but we have to subtract 1500 because they have become bad debts. They are over 90 days, so इसी में से minus होंगे over 110 days में से. 5040, उस पर 7.5% provision create करनी है. 378 total provision required is 923. Now I'm going to prepare the provision for doubtful debt account, and we have been given the balance brought down already available with us, which is 1100. Let's see the question again. Look at the question. It is written that the balance on the provision for doubtful debt account, here it is written, on 1st January 2018 was 1100. 18 का शुरू का दिया, 18 का हम चेक बना रहे होंगे अकाउंट, देखते हैं हम. ये देखें 31 दिसंबर 2018 का आपने अकाउंट बनाना है, तो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ. Provision for doubtful debt account. First, I will write brought down, which is 1100. How much provision I require? I require a provision of 923. कैसे? हमने कैलकुलेट की थी ना, 10,900 का हमने कैलकुलेट किया था 5%, 545 आया था, और हमने फिर 5040 का किया था 7.5%, जो कि 378 आया था, तो 923 की provision चाहिए थी. The entry for the provision increase is I have to decrease the provision. So I'm going for the reverse entry of, which is decrease करनी है ना, हमें कम चाहिए, ज़्यादा पड़ी हमारे पास. तो एंट्री क्या होगी? provision for doubtful debts to income statement. And what is the amount? 1100 minus 923. The amount will be 1100 minus 923, which is 177. So the entry is provision for doubtful debts to income statement, 177. Provision doubtful debt is debited by 177 because of income statement. And then I'm going to go for the total of this. 1100 is there, and the carried down will become 923, which will become the brought down of the next year. 923 brought down is very important. You need to write it down anyways. So brought down, you have to write it. 923 is your carried down and will become the brought down of the next year. This is how we prepare the provision calculated account. It carries 4 marks because the marks are for brought down 177, 923, and the brought down for the next year. That's why it is given 4 marks. इसलिए brought down के 1 नंबर है. ये लिखेंगे तो कट जाएंगे. जी, Zafar ये लिख लिया आप. मेरा ख्याल है Zafar, you understood this point easily because brought down is given in the question, already given in the question with us, which is 1100 in the same question, and the provision which we require is 923. So it means the provision needs to be decreased. So we have decreased the provision by 177 to make it 923. So reverse entry is going to be passed, which is provision doubtful debts to income statement. उससे फिर हमने आगे इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व किया है. ओके, लिख लिया आपने? एनी प्रॉब्लम हियर? नो सर, इजी. क्योंकि मुझे इसको रब करना है असल में, इसलिए मिटा दूं. ये क्वेश्चन था हमारा मई जून 19 का. अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो समटाइम्स लुक्स वेरी टेक्निकल, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है. बच्चे समझते हैं कि जरा मुश्किल क्वेश्चन पार्ट है उसका. वो पार्ट हमारा आगे आता है जी. एक्सप्लेन वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये पार्ट इसका. इसकी भी आपको पिक्चर लेनी पड़ेगी, तो पिक्चर भी ले लें साथ. आप इसको हम पढ़ते भी हैं और पिक्चर भी आपको लेनी पड़ेगी. पिक्चर ले लें आप इसकी, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट.
जी कहते हैं सोफिया इज कंसिडरिंग चेंजिंग द बेसिस ऑफ द प्रोविएंट आउटलेट्स काउंट टू ए जनरल प्रोविएंट ऑफ 2.5% ऑन ऑल ट्रेड रिसीवेबल। प्रीवियसली वी वर बेसिकली कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक प्रोविएंट, यानी कि जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते थे 61 to 90 डेज वाले, उन पर हम ले रहे थे कितने परसेंट, यानी 60 to 90 डेज वाले जो थे उन पे हम ले रहे थे कितने परसेंट। देखिए सवाल पे ये देखिए लिखा हुआ है सोफिया पॉलिसी 61 to 90 डेज में 5% थी और ओवर 90 डेज में 7.5% थी। अब वो कह रहा है तमाम ट्रेड रिसीवेबल पर, टोटल ट्रेड रिसीवेबल जो 54500 के हैं, उन पर आपने एक ही जनरल प्रोविजन अप्लाई करनी है विच इज 2.5%। चेंज किया सिनेरियो उसने, 2.5% आपने लेनी है तमाम ट्रेड रिसीवेबल पर। शी हैज कैलकुलेटेड हर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर विच इज 4300 आफ्टर राइटिंग ऑफ डिक्सीज बैड डेट्स। आपने प्रॉफिट फाइंड कर लिया है 4300 का, उसमें से बैड डेट्स माइनस कर दिए आपने 4300 में से 1500 वाले, बट बिफोर मेकिंग एन एडजस्टमेंट फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अभी तक आपने कोई एडजस्टमेंट जो है वो पास नहीं की, कोई ट्रीटमेंट आपने डाउटफुल डेट्स का अभी तक जो है वो नहीं किया। तो कैन डिस्कस हाउ द चेंज विल अफेक्ट सोफियाज प्रॉफिट, सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट कैलकुलेशन। कहते हैं इस चेंज का सोफिया के प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगा, वो मैं आपके सामने कैलकुलेट करने के लिए जा रहा हूँ। वी नो दैट कि हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं, हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल मौजूद हैं वो हमारे पास इस वक्त कितने के हैं, वो है हमारे पास 54500 के। तो 54500 में से आप पहले तो माइनस कर देंगे जो बैड डेट्स हुए हैं, क्योंकि बैड डेट्स पे तो प्रोविजन क्रिएट नहीं हो सकती ना सर, वो तो पहले हमने 60 वो जो अबव 90 डेज उसमें से माइनस किए थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो प्रोविजन सब पे क्रिएट कर रही है ना, 2.5% है प्रोविजन अब 2.5% है तमाम ट्रेड रिसीवेबल पर, ऊपर हमने शो किया इसको। तो 54500 में से अब आपने ऑल ट्रेड रिसीवेबल 2.5% निकालनी है, वो आखिरी लाइन नजर आ रही होगी ऊपर आपको हल्की सी। 54500 में से जो बैलेंस हो चुके हैं 1500 के, वो माइनस कर देंगे आप, बाकी आपका आ जाएगा 53,000। उस पर आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। 53,000 पे कितने परसेंट है अब, 2.5%, जो कि आपकी कितनी आती है 1325। हम दोबारा बना लेते हैं क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट दोबारा बना लेते हैं। नहीं भी बनाया तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो अकाउंट बना के ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अकाउंट बनाते हैं तो ब्रॉड डाउन तो आपका 1100 ही है ना, वो तो वही है, और प्रोविजन चाहिए कितनी आपको 1325। अब आपको प्रोविजन इंक्रीज करनी पड़ेगी। पहले वाले केस में प्रोविजन डिक्रीज हो रही थी, लेकिन इस केस में प्रोविजन इंक्रीज करनी पड़ेगी। कितने से, आपको 225 से। यू विल पास द एंट्री इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन डाउटफुल डेट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इनकम स्टेटमेंट, और ये आपका आ जाएगा 1325 विल बी योर कैरी डाउन, जो कि आपका नेक्स्ट का बन जाएगा ब्रॉड डाउन 1325। ये तो हमने निकाल लिया कि 225 से प्रोविजन इंक्रीज हो। आपके पहले केस में प्रोविजन डिक्रीज हो रही थी 177 से, लेकिन वो पूछ रहा है प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अगर आप प्रॉफिट में से पैसे निकालेंगे और प्रोविजन में डालेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास प्रोविजन में पहले से ब्रॉड डाउन कितना पड़ा होता है 1100 का, वी नीड ए प्रोविजन ऑफ 2.5%, जो कि हमें कितनी चाहिए 1325। सो वी नीड ए प्रोविजन ऑफ 1325 रादर, जबकि हमारे पास प्रोविजन अवेलेबल विद अस, ऑलरेडी अवेलेबल विद अस इज 1100। सो आई हैव टू इंक्रीज द प्रोविजन बाय 225, इट मींस आई हैव टू डिक्रीज द प्रॉफिट, और आई हैव टू टेक आउट प्रॉफिट फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड आई विल पुट इट इनटू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो प्रॉफिट जब मैं निकालूंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 4300 का जो प्रॉफिट था आपका, वो 225 की वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जबकि जो पिछला केस था हमारा, उसमें हमारे पास प्रोविजन जो है वो ज्यादा पड़ी हुई थी, चाहिए कम थी, हमने उसमें प्रोविजन में से पैसे निकाल के वापस प्रॉफिट में डाल दिए थे, कितने 177, राइट। तो अब वो कहता है कि बताएं, डिस्कस हाउ द चेंज विल अफेक्ट द सोफियाज प्रॉफिट, सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट कैलकुलेशन। प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका, सोफिया के प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा। सोफिया का प्रॉफिट जो है वो पिछले केस में कितना होना था, 4300 प्लस 177, वो आएगा 4477 आना था पिछले केस में, जबकि इस केस में 4300 में से माइनस हो जाना था 225, ये आपका कितना आ जाएगा 4075। ठीक है जी। सोफिया का प्रॉफिट क्या हुआ, अगर प्रोविजन डिक्रीज होती है 177 थे, सोफिया का प्रॉफिट इंक्रीज बढ़ के कितना हो जाएगा 4477, जबकि 225 की जो प्रोविजन आप बनाते हैं जिसकी वजह से प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो 4075 हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या आएगा प्रॉफिट का, ये हमने देखना है असल में। 4477 माइनस 4075, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा 402 से।
इन दिस सिनेरियो क्या होगा, प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 402. दिस इज अवर बेसिकली आंसर विच इज रिक्वायर्ड एंड विच इज सपोर्टेड बाय द कैलकुलेशन. मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था. उसने क्या प्रॉफिट पे क्या चेंज आएगा, पहले देखते हैं प्रॉफिट पे होना क्या था. अगर आप प्रोविजन बनाते हैं प्रॉफिट पे, उसने क्या राइट बैड डेट्स तो राइट ऑफ कर दिए 1500, उसको छोड़ दें, वो तो पहले माइनस कर दिए. जो प्रोविजन जब बनाएंगे आप, तो क्या होता है प्रोविजन जब बनाते हैं, जब प्रोविजन इंक्रीज करते हैं, इट मींस आप प्रॉफिट में से पैसे निकालते हैं और वापस डालते हैं किसके अंदर, प्रॉफिट में से पैसे निकालते हैं और प्रोविजन में डालते हैं, तो प्रॉफिट कम होता है. तो यहाँ पे प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, नए केस में प्रॉफिट कम हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 407, जबकि पहले केस में हम प्रोविजन में से पैसे निकाल के प्रॉफिट में डाल रहे थे, क्योंकि प्रॉफिट प्रोविजन डिक्रीज हो रही थी. उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा था हमारा 4477 बनना था, अब कितना बन रहा है 4075. हमारा प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 402 इफ द प्रोविजन ही विल गो फॉर ए जनरल प्रोविजन ऑफ 2.5%. ओके, ये कैलकुलेशन भी आपको शो करनी पड़ेगी. कोई मसला है तो मुझे बताएं. यहाँ तक मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, समझ आ गई हो जैफा, सिकंदर, अरम, एनी प्रॉब्लम?